Hello, dear student. Welcome back. Student, we are studying the limit. The limit is going on. This is the first topic of calculus. It's a door of calculus, right? Where the calculus has opened. Okay. So just in the previous videos, we look some in description and explanation about the limit, right? So now here the next thing, what the thing has formed by the limit, that is derivative, differentiation, right? Process of finding a derivative of function, right, with respect to any the variable. So this is the that process is called a differentiation. So here that as you this term differentiation, so means this term has formed by the word difference, means changes, means difference means changes of any variable with respect to change in other variable, right? For example, if we are traveling, so with the time we have covered some displacement. There are some displacement in the body with time. So with time there is a change in displacement, right? So it is also one thing. Another thing, as the velocity is changing with time, right? So change in velocity with time, right? And you know the acceleration, rate of change of velocity is acceleration, right? Acceleration of a body is rate of change of velocity. How, I mean, by which rate the velocity is being changed, right? So class, actually we will study about the how and what the difference in y with respect to change in x, that is dy by dx, right? So class, actually आपने बहुत टाइम सुना होगा कि what is dy by dx, and the first term was simple that introduced in the difference, that is dy by dx. So what is dy by dx? dy by dx is change in y with respect to x, हाँ कि x में क्या change आ रहा है, y में क्या change आ रहा है with respect to change in x, it is dy by dx, right? But class, we just talk about what is the geometrical interpretation of dy by dx. It is different, right? So that is also we will discuss. And geometrical figure will just give us one idea what's going on, what we are finding as when we are finding dy by dx. So उसमें क्या हम कर रहे हैं, हम क्या find कर, for example 2 plus 2 is 4, we know we are adding, 2 minus 2 is 0. Now we know what we are doing. We are doing subtracting, हम कोई चीज को हटा रहे हैं, right? 4 divided by 2, we know what is division. हम division कर रहे हैं. So we know what is division, what is multiply, what is plus and minus. In the same manner, also we must know if we are finding dy by dx, what we are doing, हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लोग क्या वैल्यू इवैल्यूएट कर रहे हैं. It's a very much important to know with the topic, right? So now class, I am writing here some figure I am drawing here. Okay, so now the topic is derivative and differentiation, means it is a process of finding the derivative of y, okay, with respect to change in x. So means the first one that will become, that is also I'm writing here, dy by dx. So we will see that how the term is created. It means actually everything has generated with also we say everything has a one base from where the topic is evolved, is originate. So what is the originating point of dy by dx? That is a slope. So you know what is slope? So for example, if you are finding the slope of a line, so slope is equal to slope, that is m, and that is equal to y2 minus 5 upon x2 minus x1. This is slope. It is slope, right? So there is a 2-point line. So from this point we can find the slope. So from this slope also we can write as in this way: del y upon del x. Del means change, delta y upon del x, right? So it is also a delta, it is a small delta y and del x, and it is also a change, it is also for change. In the same manner, d is, what is d? D is a difference. So also we can write as here with that dy by dx. So this word has concerned with the slope y2 minus 5 upon x2 minus x1. ये किस तरह से लिंक अप है, ये मैंने आपको शो कराया. आफ्टर दिस क्लास अब इसको हम इनिशिएट करेंगे, मतलब 11th के टॉपिक से, कि हम अब देखिए अब इस स्लोप के अंदर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, अभी हम आ जाएगा dy by dx.
अभी तो एक्चुअली स्लोप है ना, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर स्लोप फाइंड कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर अभी स्लोप फाइंड कर रहे हैं। क्लास अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फिगर लिया क्लास, ये हमारा एक फिगर है, ये पॉइंट आपका, एक पॉइंट आपका सी, इट इज पॉइंट सी, ये पॉइंट आपका सी प्लस एच है, मतलब ये डिस्टेंस आपकी एच है, ये ओरिजिन प्लस ये एक्सेस है, राइट। और एक इसका हम रेयर में पॉइंट ले रहे हैं, इन द रेयर पोजीशन, this point is c minus h, clear. This function is y is equal to fx fillet, right. So now this point a is c plus h, f c plus h, right. This point is c comma fc. What is fc? fc is y na, y comma x होता है ना, sorry x comma y, तो x is c and y is fc. This point we let it is point b, and this is point C, and the coordinate of this point is C minus H, comma FC minus H. Clear? So there are the 3 points we have taken, A, B, and C. After this, now if we are finding the slope of AB and slope of BC, एक क्लास में एक और हम फिगर यहाँ बना रहे हैं, क्लास ये हमारा y is equal to एक फंक्शन है आपका, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक बनाया tangent. We are drawing one tangent here. Okay, it is our tangent I drawn, and the angle is theta is forming. Means that tangent, plus this point is joined here, right? This point is passing from point B. Okay, it is our tangent at B. It is this line is we can say it's PQ, tangent PQ at B. Understand? This is point B. And it's makes angle theta, right. So what is dy by dx? Dy by dx is equal to slope of tangent PQ at point B. Why at point B? Because this tangent is intersecting that y is equal to fx at point B. So I am writing here at point B. It is dy by dx. So what is dy by dx? It is nothing, it is only we are finding the slope of tangent, right. So when we find the slope of tangent at any point, and from that on that point where the line is intersecting, the y is equal to fx, so this is dy by dx, right. Understand? After this class, actually हमको जो हमारा डिफरेंशिएशन टॉपिक है, ये कंसेंट है लिमिट से, तो जो हमारे वेस, जो हमारा आइडिया लिमिट का था, सेम आइडिया हमारा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चीजें यहाँ लिखी है, फॉर एग्जांपल स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको एक डिफरेंस बनाना चाह रहा हूँ, क्लास इसको आप नोट करते रहें, और आफ्टर दिस नेक्स्ट हम लोग एक और यहाँ पर कुछ चीजें क्लास ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद उसको हम लिमिट से डिफरेंस, क्या से डिफरेंस है वो यहाँ पर हम रिलेट करने जा रहे हैं। नाउ क्लास सी, सो क्लास हम पहले से लिमिट थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमें लिमिट हमने क्या स्टडी किया था, वी हैव फाइंड फॉर एग्जांपल इफ यू आर फाइंडिंग द लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx, राइट। तो क्लास इसको फाइंड करने मैंने बोला था कि वी विल फाइंड LHL एंड RHL। सो व्हाट इज द LHL एक्सप्रेशन ऑफ LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एंड माइनस fx, राइट। क्लास अगर इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर k आ रही है, और अगर हम लेते हैं RHL, और RHL की वैल्यू क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस fx, अगर इसकी वैल्यू भी क्लास क्या है, तो अगर जो LHL RHL की वैल्यू होगी वही वैल्यू क्लास लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx की भी हो जाएगी। इस क्लास इस मैनर में हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन को, डिवाइड बाय dx, ठीक है। तो हम क्लास यहां पर लिखते हैं एक्सप्रेशन डिवाइड बाय dx के। देखिए पहला क्लास क्या आएगा, हम लोग यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, dy by dx is equal to लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, वैसे क्लास मैंने यहां पॉइंट c लिया है, एक हम वेरिएबल लेते हैं पॉइंट x,
तो मैंने यहां लिया x प्लस एच माइनस एफ एक्स, राइट, अपॉन एच, अपॉन एच। अब अपॉन एच कैसे आ रहा है, देखिए मैं बताता हूं। यहां आप लिखिए x प्लस एच माइनस एक्स, तो ये क्या है क्लास, देखिए y2 माइनस y1, आपने सी पॉइंट को x सिलेक्ट कर लिया, तो आपका ये पॉइंट क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो खाली आप c को रिप्लेस करिए x से, तो आपको यही मिलेगा एक्सप्रेशन। यहां पर x and x has cancel out, right? So now we have this relation, plus this is the expression of dy by dx। तो जब हम dy by dx में, अब यहां पर मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहां पर लिमिट सर आपने कैसे अप्लाई किया, तभी dy by dx कैसे क्यों हो गया, ये सब चीजें मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा देखिए, ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन मैंने इसको इससे कनेक्ट किया, राइट। अब ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो मैं लिख रहा हूं, एक मैं चीज लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड LHD, इट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्लास कैसे आएगा, देखिए यहां पर आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, राइट, a माइनस, a से यहां लेस है, और अच्छा यहां पर आप c, हमने एक पॉइंट c किया है, तो यहां पर आप c माइनस भी ले सकते हैं, वी कैन टेक c माइनस, राइट। अच्छा अब हम यहां लिखेंगे f c माइनस लिखते हैं, वरना कंफ्यूजन क्लास होगा, c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन h, अपॉन माइनस h, ठीक है। अच्छा अब ये कहां से एक्सप्रेशन आ रहा है, अब आप फाइंड कीजिए स्लोप ऑफ BC, तो यहां फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ BC, तो स्लोप ऑफ BC का क्या आएगा, y2 माइनस x2 माइनस x1। जब अप्लाई करेंगे तो आपको यहां देखिए ये B and C पॉइंट है, तो यहां से हमको पॉइंट मिल जाएगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी, सी एंड सी क्या है क्लास, कैंसिल, राइट। मैं इसको रेस कर देता हूं, तो आपको क्या मिल रहा है फाइनली, माइनस एच मिल रहा है। अच्छा अब जब आप इस BC में, जब आप अगर क्लास h जीरो हो जाए, हमारा h जीरो होता है, तो अब जब h जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, तो इसमें आपको मिलेगा ये जो सेकंड है, तो सेकंड अगर h टेंडिंग टू जीरो, सेकंड जो है वो बन जाएगा, वो आपको हो जाएगा टेंजेंट, और वो ये जो ये BC है ना, देखिए मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, ये हमारा LHD है, जिसे मैंने यहां लिखा, मैंने यहां स्लोप लिखा, उसको h टेंडिंग टू जीरो कर दिया, प्लस यहां पर h टेंडिंग टू जीरो कर रहा हूं, h टेंडिंग टू जीरो, ठीक, ये आपका LHD हो गया। अब जब h टेंडिंग टू जीरो है, तो ये टर्न होकर ऐसे आ जाएगा, मतलब ये टेंजेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट आपका ले लो RHD, अब आप लिखते हैं, अब आप एक लिखते हैं, ये हमारा RHL है, अब मैं लिखता हूं उस तरह से RHD। आप कंसर्न, मैंने क्यों लिखा है कि आप कंसर्न कर लें, आप कोरिलेट कर लें। सो नाउ इक्वेशन ऑफ दिस वन इज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन प्लस एच, राइट। ये कहां से आया, आप फाइंड करिए स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, तो क्या आएगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच प्लस एच। इस पे जब आप लिमिट h टेंडिंग टू जीरो अप्लाई करेंगे AB में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेंजेंट। तो क्लास अभी ये तो आप, ये आप हमारे BC है, ये हमारा AC है। अब जब ये अगर दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे ना, मींस नाउ इट बिकम अ वन टेंजेंट, क्या बन गया, ये बन गया टेंजेंट, ठीक है। तो ये जो दो हमारे सेकंड थे, एक तो हमारा AB एक BC है, जब अगर ये दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, दोनों के स्लोप्स इक्वल आ रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा, तो ये दोनों हो जाएंगे कोलिनियर, मतलब जो हमारा ABC पॉइंट है ये हमारा इस लाइन पर आ जाएगा ना, कोलिनियर हो जाएंगे। जब कोलिनियर होंगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट, तो टेंजेंट PQ के ही कोलिनियर हो जाएगा ना, मतलब कोइंसाइड कर जाएगा ना PQ पर, अंडरस्टैंडिंग, राइट। और व्हाट इज द स्लोप ऑफ PQ, जस्ट मैंने पहले लिखा था, अभी मैंने इरेज किया, क्या लिखा था मैंने, कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट पॉइंट P, दैट इज कॉल्ड dy by dx, क्लियर। तो बात समझ में आ रही क्लास कि अगर इसकी वैल्यू हम लेट करते हैं a फॉर एग्जांपल, और इसकी वैल्यू आ रही है a सॉल्विंग पर, तो जो dy by dx लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, या हम इसको c भी लिखा ले सकते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, हम c लेट कर लें, c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इसकी क्लास वैल्यू भी क्या आएगी, इसकी वैल्यू भी आपको a ही आएगी। अब देखिए यहां पर जो LHL की वैल्यू k थी, RHL की वैल्यू k थी, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, इन अ सेम मैनर जो हमारा LHD आ रहा है,
जो हमारा RHD आ रहा है, जो इन दोनों की वैल्यू आ रही है वही वैल्यू उसकी भी आ रही है। और इसका मतलब क्या है, अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब LHL जो होता है RHL से इक्वल होता है, तो आप बोलते हैं लिमिट जो है वो क्या कर रही है, लिमिट डस एग्जिस्ट, राइट। लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है जब LHL RHL इक्वल है। और इन सेम मैनर अगर आपका LHD इज इक्वल टू RHD है तो आप क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डेरिवेबल एट पॉइंट बी, फंक्शन डेरिवेबल एट पॉइंट बी, मतलब ये कि हम स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड कर सकते हैं एट पॉइंट बी, हम बी पॉइंट पर एक टैंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं जब LHD RHD दोनों इक्वल हो। मतलब जो मीनिंग यहाँ है वही मीनिंग यहाँ पर है, बट यहाँ पर लिमिट की बात करिए, यहाँ पर डिफरेंशिएशन की बात की जा रही है, तो कोई डिफरेंस तो क्लास नहीं है ना, आपको रिलेट इजीली कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे ये एग्जिस्ट कब नहीं करता है, या तो दोनों की वैल्यू अनइक्वल हो, या तो RHL ना एग्जिस्ट कर रहा हो या LHL एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो आप कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सिमिलरली आप यहां पर आ जाओ, कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेबल कब नहीं होगा, जब नहीं होगा या तो LHD RHD दोनों अनइक्वल होंगे, क्लास को आप नोट कर लीजिए, और या तो LHD एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा या RHD एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। इन केसेस में आप कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो पॉइंट बी पर डेरिवेबल नहीं है। क्लास क्लियर, ठीक है। तो आपने लिमिट से डिफरेंशिएशन को मैंने कोरिलेट कराया, ठीक। अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने एकदम से अभी इवॉल्व नहीं कर दिया, मैं आपको स्लोप से लेकर आया, आप स्लोप स्टडी कर चुके हैं 9th में 10th में, y2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक, क्योंकि डिफरेंस ही तो है। अच्छा, और यहां भी डिवाइडेड क्या है, तो स्लोप ही है, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट बी, राइट। तो क्लास क्लियर है। अच्छा, अब हमने डिवाइडेड का हमने एक फॉर्म कर लिया। अब क्लास एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है क्लास, इसको आप नोट कर लें, उसके बाद क्लास आप इसके बाद नोट करिए चीज को, जो हम लोग अपने क्वेश्चन पर जो है वो यूज करेंगे। एक्चुअली क्लास मेन हमारा क्या है कि अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, right, from first principle, right। Now class C, differentiation of y with respect to a form first principle। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है क्लास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप फाइंड आउट करेंगे dy by dx is equal to limit h tending to 0 f x plus h, मैंने एक पॉइंट ले लिया वेरिएबल पॉइंट x, मैंने को c पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं x माइनस fx अपॉन h, इट इज कॉल्ड dy by dx, दिस इज कॉल्ड dy by dx। क्लास आपको उसको लर्न करना है, मैंने यहां भी मेंशन किया, फिर मैंने यहां पर इसको मेंशन किया, आप इसको लर्न करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अब हम किसी भी फंक्शन y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्लास हमारा बेसिक फॉर्मूला ये होता है, इसी बेसिक फॉर्मूले से सारे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट होते हैं। फॉर एग्जांपल y is equal to s to the power n, y is equal e की पावर x, y is equal to log x, y is equal a to the power x, y is equal sin, जितने भी फंक्शंस फॉर्म हो रहे हैं, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, लोगैरिथम हो, मॉडुलस फंक्शन, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हैं सबका जो हम जब उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो क्लास आपके इस रिलेशन से आएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको हम फॉलो करके हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हम फॉर्मुलेज फ्रेम कर लेंगे, हम लिस्ट फ्रेम कर लेंगे, लिस्ट फ्रेम करने के बाद तब क्या होगा, तब बेनिफिट ये होगा, उसके बाद फिर हम उन फॉर्मुलेज को यूज करके डायरेक्टली अपने आंसर फाइंड आउट करते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है फाइंड dy by dx when y is equal to cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपको इस रूल से इसको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली आप आंसर नहीं लिख सकते ना, y डैश इज साइन x, ठीक है। तो ऐसा नहीं मेंशन कर सकते क्योंकि आपको इधर से आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना होगा, ठीक है। क्लास के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम कुछ फॉर्मूला यहाँ पर लिस्ट करेंगे।
सुनाओ क्लास, अब हम आपको एक यहाँ पर बताएंगे रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बट पहला पॉइंट ये है कि व्हाट इज कंटिन्यूटी। क्लास कंटिन्यूटी ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई फंक्शन लिया y इज इक्वल टू fx, आपका एक फंक्शन राइट, एट पॉइंट एट x इज इक्वल टू c, आपने c पॉइंट पर आपने वैल्यू फाइंड किया, तो फंक्शन ऑफ वैल्यू एट दैट पॉइंट मतलब कि fc पे क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू fc आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, और अगर LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और फंक्शन ऑफ वैल्यू एट दैट पॉइंट, अगर ये तीनों, अगर ये all three quantities are same, right, if the all three quantities are same, then you say the function is the fx is continuous। आप बोलेंगे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, मतलब जब आप इसको आप ड्रॉ करेंगे तो देयर इज नो एनी गैप, राइट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप कोई भी गैप नहीं मिलेगा और आपको एक यहां पर कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा, ठीक क्लास। आफ्टर दिस क्लास अब आपको एक चीज देखना है यहां पर कि फंक्शन कंटिन्यूटी है और डेरिवेबल, आपने रखा डेरिवेबल कैसे है। अब डेरिवेबल के लिए क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है कंटिन्यूटी के लिए। डेरिवेबल के लिए कंडीशन ये है, द फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू c के लिए क्या कंडीशन है कि LHD इज इक्वल टू RHD, ये दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है तो आप कहेंगे फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू c। फंक्शन कैसा है, डेरिवेबल है एट x इज इक्वल टू c। तो ये क्लास दो कंडीशन। अब इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या है, प्लस रिलेशन ये है कि अगर फंक्शन आपका डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, राइट। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस अगर फंक्शन आपका नहीं है तो डेरिवेबल भी नहीं होगा, फंक्शन आपका उस पॉइंट डेरिवेबल भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो मे और मे नॉट बी डेरिवेबल, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देयर इज अ नीड टू चेक, हमें यहां पर चेक करना पड़ेगा, क्लास क्लियर, पॉसिबल चीज है। तो आप ऐसा समझो आप कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएन है, किसी एक स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, इंडिया की, आप यूपी की स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप इंडियन भी होंगे क्योंकि यूपी इंडिया के अंदर है, राइट। तो अगर आप यूपीएन है तो आप इंडियन भी होंगे, ठीक। अगर आप नॉन इंडियन है, अगर आप इंडियन नहीं है तो आप यूपीएन भी नहीं होंगे क्योंकि यूपी तो इंडिया के अंदर है ना। लेकिन अगर आप इंडियन है तो अब आप यूपीएन है नहीं तो आपको चेक करना पड़ेगा। आप हो सकता हो मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, आप हो सकता हो यूपी उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। तो इतना सी कंडीशन, थोड़ा सा आइडिया है आपको समझने के लिए, राइट। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आप इसको ले लीजिए, एक स्टेट से आप मान लीजिए आपका एक स्टेट है और ये आप क्या है, कंट्री, ठीक है। तो ये स्टेट है और ये कंट्री, तो आप ऐसे से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब क्या देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल का जो टॉपिक है, हम अगर फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो मैंने यहाँ पर डेरिवेबल और कंटिन्यूटी को मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके किसी फंक्शन को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम इस टॉपिक पे आ गए, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है वो है dy by dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। प्लस ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पर 3 टर्म्स है, h तो ऑलरेडी सॉल्व है, fx गिवन होगा, x प्लस h हम फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। हम एक लेट कर रहे हैं, लेट fx is equal to, let fx is equal to x square, हमने एक सिंपल फंक्शन ले लिया। अब यहाँ आपको उसका dy by dx फाइंड आउट करना है। अब dy by dx फाइंड आउट करना है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक। जैसे कि 2 + 2 4 है, तो 4 क्या है, 4 2 और 2 का एडिशन है, हमको पता है ना। ऐसे ही अगर हम dy by dx फाइंड करें x स्क्वायर तो उसका आंसर आ रहा है 2x, बट व्हाट इज 2x, 2x क्या है। तो अब यहाँ देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा fx हो गया, दूसरा आपका हो गया fx प्लस h ले लीजिए, तो x की प्लेस पर आ जाएगा h, x प्लस h आ गया।
क्लियर। इन दो चीजों का भी हम लोग यहाँ फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। सो नाउ dy by dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 x प्लस h ऑफ होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h। अगर आप h लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, ये आपका 0/0 की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम इसको ओपन कर लेंगे फॉर्मूले से, तो आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, h टेकिंग कॉमन प्लस आपको h कॉमन लेना है, आप h कॉमन लेते हैं तो आपको आता है h प्लस 2x अपॉन h, h एंड h कैंसिल आउट। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर इज 2x। ठीक है, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लास इसका ये है कि अगर आप बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये u बनता है, कब बनता है एक्चुअली, ठीक है ना, एक आपका u आप याद रखिए, तो ये हमारा बन गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं रफली बना रहा हूं। अब इसमें क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, टैंजेंट, ठीक है, तो आपको पॉइंट अलग अलग आते जाएंगे एट x इज इक्वल टू 1, तो आपका जो डिवाइडेड क्या आ गया, यहां पर जो dy by dx होगा दैट इज 2x। अब अगर आप बात करें एट x इज इक्वल टू 1, तो dy by dx क्या आ जाएगा, आप ये लिख भी सकते हैं ब्रैकेट x इज इक्वल टू 1, dy by dx एट x इज इक्वल टू 1, क्या आंसर आएगा, 2 into 1, आंसर इज 2। फॉर एग्जाम्पल आप ये 1 लिख करते हैं तो 1 पे नियर लेते हैं, 1 पे अगर आप यहां पर बना रहे हैं, यहां पर जब आप यहां पर बनाएंगे टैंजेंट, जब आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टैंजेंट में जो क्लास स्लोप आएगा, द स्लोप इज 2, तो स्लोप क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब जो m की वैल्यू आएगी, जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, 2 आएगा। और सिमिलरली आप यहां पर -1 पे ले लीजिए, तो -1 पे आप ऐसे बनाएंगे, तो यहां पर आप ऐसे बनाओगे तो क्या आएगा, dy by dx एट x इज इक्वल टू -1, तो 2 into -1 दैट इज -2, तो यहां पर इसका स्लोप -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। जैसे 2 + 2 4 क्या 2 और 2 का एडिशन है, वैसे यहां पर भी आपको पता होना चाहिए कि आप dy by dx फाइंड आउट कर रहे हैं, बट क्या है, व्हाट इज दैट, क्या है, तो ये समझ लो कि स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला है। x क्या है, पॉइंट है, x आप पॉइंट बदलते जाओगे, स्लोप और डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको स्लोप मिलता रहेगा। क्लास क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे आप अप्लाई करोगे। अब क्लास फॉर्मूलाज बदलेंगे, फंक्शन बदलेगा, सॉरी फंक्शंस आपके चेंज होंगे, तो उसमें आपको डिफरेंट फॉर्मूलाज आपको यूज करना। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री वाला आपको साइन सी माइनस साइन डी या कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई करना पड़ेगा। कहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको कुछ जो हमारे फॉर्मूलाज हैं वो यूज करना पड़ेंगे। लिमिट वाले जो हमने आपको एक्सपोनेंशियल वाले, पहले हमने जो लिमिट वाला जो हमारा वीडियो है आप उसको देखिएगा, हमने लास्ट में सारे फॉर्मूले समराइज किए हैं। तो यहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लिख रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप 3 फॉर्मूले लिखिए इस तरह से, ठीक है, अब इसे आपको याद हो जाएगा जल्दी से। यहां पर लिखो log 1 + x अपॉन x, इट इज 1। यहां पर लिखो e की पावर x - 1 अपॉन x, ये हो जाएगा log a, ठीक है, और यहां पर लिखो e की पावर x - 1 अपॉन x दैट इज इक्वल टू 1। बस ये तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है, तीन ये है क्लास, एक sin x अपॉन x है, tan x अपॉन x है, एक x अपॉन वो तो उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, एक sin x है, cos x है, एक है 1 - cos अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये सब की क्लास कुछ ही फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करना है, जो हम लोग को बार-बार यूज करना है, ठीक है। तो एक क्लास से 3 फॉर्मूले आपको मैंने याद करना है स्टाइल से, आप भी ऐसे प्रैक्टिस करो, आपको भी लर्न हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम कहीं मान लो फॉर एग्जांपल आप ex फाइंड कर रहे हो, y इज इक्वल टू ex आप फाइंड आउट कर रहे हो, y इज इक्वल टू e की पावर x आप फाइंड आउट कर रहे हो, y इज इक्वल टू log x आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो वहां पर इन फॉर्मूलेस को हम लोग यूज करेंगे इस फर्स्ट प्रिंसिपल से dy by dx फाइंड आउट करने के लिए। क्लास क्लियर? तो अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके क्लास, गुड बाय।